Good morning, children. Take out your value education books to page 2121. Take your pencils and write down read. Now, this is story activity. This lesson is story activity on page 2121. You can see the page number 2121. And what is this written? Story activity. Listen to the story, then discuss it in class. But since we are not in class, you read the story. I'm reading the story, explaining you the lesson. You also read the story, okay? And try to answer the questions behind. What questions are given, you try to answer them. Take out the answers from the lesson. Though I will send you the question answers. Don't worry, I will take some more questions and make and send you. Now let us read the lesson. Grandfather Parrot. What is this story name? Grandfather Parrot. On a tree in a forest, there lived a family of parrots. So, on a tree in the forest, forest must have jungle. Jungle में there was a tree, and on that tree कौन रहता था? A family of parrots, many parrots. Grandfather, grandmother, mother, father, children, so many parrots. The oldest among them was the grandfather parrot, and the oldest parrot among them was the grandfather parrot. One day, the old parrot saw a small climbing plant at the foot of the tree, and the tree which they were living on. One day, the grandfather parrot he saw one small climbing tree, a climber, a small tree climbing to the big tree. He called out his grandchildren and said, he called out all the grandchildren, all the other parrots and said, "My dear, I want one of you to fly down and pull out that creeper by its root." So he called them and he said, "See, children, see, you all can see this climber?" They said, "Yes, grandfather." So said, "Okay, so now I want one of you to go down, fly down and pull out that climber." मतलब नीचे उड़ के वो क्लाइंबर, वो छोटा प्लांट जो उग रहा है उसको खींचो, टेक इट आउट फ्रॉम द रूट्स, जमीन से खींच निकालो. बट हिज ग्रैंड चिल्ड्रन सेड, बट वॉट डिड हिज ग्रैंड चिल्ड्रन? अभी ग्रैंडफादर ने काम दिया, ग्रैंड चिल्ड्रन को करना नहीं है, सुस्ती आ रही है, दे आर लेजी. सो वॉट डिड द ग्रैंड चिल्ड्रन से? बट इट इज सो प्रिटी ग्रैंडपा, प्लीज लेट इट स्टे, इट वोंट हर्ट अस. तो बच्चे ने क्या बोला? अरे ग्रैंडपा, इतना सुंदर तो दिख रहा है, अपने बिग ट्री के पास में एक छोटा सा क्लाइंबर उग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है, ये अपने को क्या हार्म करेगा, ये अपने को कोई तकलीफ नहीं देगा, लेट इट बी, इट इज़ लुकिंग वेरी प्रिटी. बट ग्रैंडपा जानता था कि ये क्लाइंबर उनके लिए मुसीबत हो सकता है. ग्रैंडफादर पैरट वॉज टू टायर्ड टू गो एंड पुल आउट द क्रीपर हिमसेल्फ. और ग्रैंडपा अभी बुढ़े हो गए, ही वॉज टू टायर्ड, उससे नहीं हो रहा था नीचे उड़ के वो पौधे को निकालना, वो नहीं हो रहा था उससे. सो वो रहने दिया. सी, लुक एट द ट्री चिल्ड्रन, यू कैन सी द ब्यूटिफुल ट्री, हियर ऑल द पैरट्स आर, एंड यू कैन सी दिस क्रीपर हाउ इट इज़ क्लाइंबिंग अराउंड द ट्री. ये सी, यहाँ से गोल 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 एंड इज क्लाइंबिंग टू द ट्री. एंड ग्रैंडफादर टोल्ड देम, ये क्रीपर को पूरा खींच के निकालो. बट द पैरट्स, द ग्रैंड चिल्ड्रन, व्हाट दे सेड? नहीं ग्रैंडफादर, कितना प्यारा लग रहा है, ये अपने को क्या तकलीफ देगा. नाउ सो यू नो दिस ट्री, कीप इट इन योर माइंड, अपने माइंड में रखो ये क्रीपर, ये ट्री. नाउ टर्न योर पेज टू पेज 2222. लेट अस रीड. Soon the creeper grew right up to the top of the tree. So now the creeper बड़ा होता गया and it reached the top, ठेठ ऊपर तक. सो पूरे ट्री को इसने रैप करके ठेठ ऊपर तक पहुंच गया. वन डे अ हंटर पास बाय एंड सॉ द पैरट्स ऑन द ट्री, इन द ट्री. सो वन डे वन हंटर मतलब शिकारी, ही पास्ड बाय, वो शिकारी वहाँ से निकला और इसने देखा, अरे इतने सारे पैरट्स, कितने प्यारे पैरट्स इस ट्री पे. इफ़ आई कैच देम आई कैन सेल देम इन द मार्केट, ही थॉट. और शिकारी
ने सोचा, अरे मैं ये पैरट्स को पकड़ूंगा और बाजार में बेचूंगा तो मुझे इतने सारे पैसे मिलेंगे, आई विल टर्न रिच, वेरी गुड आइडिया. So now see what the hunter did. The hunter came back the next day. Next day the hunter came back. दूसरे दिन the hunter वापस आया. The parrots had gone away in search of food. And when the hunter came, no parrots were on the tree. They all went flying looking for food, to collect food, to eat food. The hunter quickly climbed up the tree using the strong, wiry stem of the creeper. Then he laid a net for the parrots. Now what did the hunter do? वो देखा कि कोई पैरट्स ट्री पे नहीं है, क्लाइमर के थ्रू क्लाइमर को पकड़ पकड़ के चढ़ गया एंड ही पुट वन नेट, एक नेट को बिछा दिया. बोला जब ये पैरट्स वापस आएंगे उन नेट तो देखेंगे नहीं, उसमें बैठ जाएंगे और मैं नेट को खींच के उतार के ले जाऊंगा, तो सब पैरट्स को ले जाऊंगा. सो विद द हेल्प ऑफ द वायरी स्टेम, वो स्टेम के थ्रू, अगर वो क्लाइंबर नहीं होता तो हंटर चढ़ पाता? नो, वो ट्री पे बिल्कुल चढ़ नहीं पाता. बट बिकॉज वो क्लाइंबर था, उसके स्टेम थे, इसलिए वो चढ़ गया. एंड ही पुट द नेट टू ट्रैप द पैरट्स. When the parrots came back in the evening, the poor things were caught in the hunter's net. Grandfather parrot was trapped too. The young parrots were scared. Now when they came back in the evening, जब ये लोग वापस आए, उनको पता नहीं है कि नेट बिछा हुआ है. They came and sat down आराम से, and ये लोग सब नेट में पकड़ गए. Even the grandfather parrot also and all the other parrots were all caught in the net. और अभी उनको डर लगने लग गया, ये यंग पैरट्स डरने लग गए. Grandpa, they cried, we should have listened to you, please save us. फिर इसके ग्रैंड चिल्ड्रन चिल्लाने लगे, ग्रैंडपा ग्रैंडपा, हम आपके कहना मानना था. अगर हम वो क्लाइंबर को काट देते, अगर हम वो क्लाइंबर को निकाल देते रूट से, तो आज ये हंटर हमको नेट में पकड़ नहीं पाता. हम आपके कहना मानना था. वी आर सॉरी. अभी प्लीज़ हेल्प अस, अभी कुछ करो, हमको बचाओ. देयर वॉज ओनली वन वे, सेड ग्रैंडफादर पैरट. सो ग्रैंडफादर ने बोला अभी एक ही रास्ता है जो हम सब बच सकते हैं. वी मस्ट ऑल बी स्टिल एंड बिहेव एज इफ वी वर डेड. तो इसने बोला देखो एक ही तरीका है अगर बचना है, तो जब हंटर आएगा तो सब ऐसे सोना जैसे तुम्हारे में जान नहीं, अपने सांस को रोक के रखना. द हंटर कांट सेल डेड पैरट्स. as soon as he unties the net, we must all fly away. और ग्रैंडपा बोलता है देखो बेटा, एक काम करना, सब सांस पकड़ के रोक लेना. जब हंटर आएगा तब वो जब नेट खोलेगा, बोले अरे ये तो सब मरे हुए हैं, उनको लेके मैं करूँगा क्या. और जैसे वो नेट खोलेगा अपने सबको फटाफट उड़ जाना है. इसी तरह से अपन अपने को बचा सकते हैं. सो क्या करना है अपने को, जब हंटर आएगा तो सोना है सांस अंदर लेके, बताना नहीं है कि अपन जिंदे हैं. सो द पैरट्स ले वेरी स्टिल. सो पैरट्स एकदम स्टिल, एकदम सीधा, बिल्कुल हिले विगर नहीं, ऐसे जैसे मर गए ऐसे लेट गए. When the hunter came back, the parrots lay still as if they were dead. तो when the hunter came, देखा अरे ये तो सब मरे हुए पैरट है. What a waste of time he thought, untying his trap. और इसने बोला अरे कितना मेरा टाइम कैसा बेकार हो गया, ये सब तो मरे हुए पैरट है, मैंने इतना टाइम बिगाड़ा. और इसने नेट को खोला. At once all the parrots flew away, much to the hunter's surprise. और जैसे ही इसने नेट खोला, all the parrots सब उड़ गए और हंटर एकदम सरप्राइज में पड़ गया. अरे ये तो सब जिंदे थे, कितने चंट है ये पैरट्स. How clever you are, grandfather, said the happy young parrots. और young parrots सब उड़ के पेड़ पे वापस चले गए. और ग्रैंडफादर बोला ग्रैंडफादर आप कितने होशियार है. हाउ हैप्पी वी आर दैट यू आर अ ग्रैंडफादर, हाउ स्मार्ट यू आर. एंड
सो दिस इज़ द स्टोरी. सो इससे क्या अपने को क्या सीख मिलती है? वी मस्ट ऑलवेज लिसन टू आवर एल्डर्स. जो भी अपने एल्डर्स अपने को बोलते हैं, वी मस्ट ऑलवेज लिसन. उनकी कहना मानना चाहिए. देखो उन लोग ने ग्रैंडफादर का कहना नहीं माना तो ये लोग ट्रबल में आ गए. बट हाउ ग्रैंडफादर सेव्ड देम. नाउ चिल्ड्रन, रीड दीज क्वेश्चंस एंड ट्राई टू आंसर देम. व्हाई डिड ग्रैंडफादर पैरट वांट द क्रीपर पुल्ड आउट? ग्रैंडफादर ने क्यों बोला पुल इट आउट? सेकेंड वन, व्हाट डिड द हंटर डू? और हंटर ने क्या किया? नंबर थर्ड, what did the young parrot say to grandfather end of the story? और end of the story जब ये लोग सब बच गए, what did the young parrots tell grandfather? So children, read this well and try and answer the questions. Thank you children. Have a good day. I will send you the question and answers and fill in the blanks of this lesson. Read it but. Thank you children. Be good.